हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12 टी एस गिरेवाल की टेक्स्ट बुक से 2024 एडिशन वॉल्यूम 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स चैप्टर 5 रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्वेश्चंस रिलेटेड टू व्हेन एग्जिस्टिंग टोटल कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स इज टू बी इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। Question number 44. Shweta, Meenu and Asha were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:5:2. Meenu retired on 1st April 2022. After making all adjustments relating to revaluation, goodwill and accumulated profits etc., capital accounts of Shweta and Asha showed credit balances of rupees 3 lakh and rupees 1 lakh respectively. It was decided to adjust the capital of Shweta and Asha in their new profit sharing ratio. Pass necessary journal entries for bringing in or withdrawal of the necessary amounts involved. Show your workings clearly. So let us understand this in solution. We have three partners, Shweta, Meenu and Asha. And their profit sharing ratio is 3:5:2. Who has retired? Meenu has retired. Meenu retired. So the remaining partners are Shweta and Asha. So their new profit sharing ratio will be 3:2 because Meenu has left the firm. And capitals क्या क्या है श्वेता और Shweta's capital after all adjustments means closing balance of capital account of Shweta is rupees 3 lakh and that of Asha rupees 1 lakh. सो जो नया फॉर्म बन रहा है उसका कैपिटल 4 लाख ही होना चाहिए, लेकिन ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हमें बनाना पड़ेगा। सो इसे हम 3:2 में ब्रेक करेंगे। सो व्हेन इट इज ब्रोकन इन द रेशियो 3:2 फॉर मीनू एंड फॉर आशा, नॉट मीनू, श्वेता एंड आशा। So it is 2,40,000 for Shweta and rupees 1,60,000 for Meenu. So दोनों को मिलाएंगे तो आएगा 4 लाख रुपीस। नाउ देखिए श्वेता का कैपिटल बैलेंस ऑलरेडी 3 लाख रुपीस का है, उसे हमें 2,40,000 बनाना है। सो श्वेता का कैसा होगा? श्वेता का 3 लाख रुपीस का उसका कैपिटल है और हमें उसको 2,40,000 में कन्वर्ट करना है, मतलब 60,000 rupees Shweta will withdraw. On the other hand, आशा का कितना है? 1 लाख रुपीस है और हमें बनाना है इसे 1,60,000। सो यहाँ आ गया -60,000। फाइन। सो दिस विल इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल। सो श्वेता को कैपिटल कम करना है 60,000 रुपीज से और आशा को कैपिटल लाना है 60,000 रुपीज का। सो जर्नल एंट्री करेंगे। आशा विल ब्रिंग रुपीज 60,000, सो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू आशा's कैपिटल अकाउंट। And date is 1st of April 2022. Whereas Shweta will reduce the capital. So Shweta's capital account debited to bank account. आफ्टर ऑल बैंक अकाउंट में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन इनका रीअरेंजमेंट ऑफ कैपिटल हो रहा है।
So this is the solution for question number 44. So let us see now question number 45. Amit, Balan and Chandar were partners in a firm sharing profits in the proportion of 1/2, 1/3 and 1/6 respectively. Chandar retired on 1st April 2014. The balance sheet of the firm as on the date of Chandar's retirement was as follows. Sundry creditors rupees 12,600, Employees Provident Fund rupees 3,000, General Reserve rupees 9,000, Capital Amit rupees 40,000, Balan rupees 36,500, Chandar rupees 20,000. And to the asset side, bank rupees 4,100, debtors rupees 30,000 minus 1,000 PBD, that is provision for bad and doubtful debts. In the outer column, it is 29,000. Stock rupees 25,000, investments rupees 10,000, patents rupees 5,000, machinery rupees 48,000, and grand total is rupees 1,21,100. It was agreed that goodwill of the firm will be valued at rupees 27,000. Depreciation of 10% was to be provided on machinery. Patents were to be reduced by 20%. An old photocopier previously written off was sold for rupees 600. Chandar took over investments at rupees 15,800, and Amit and Balan decided to adjust their capitals in proportion of their profit sharing ratio by opening current accounts. Prepare revaluation account and partners capital accounts and on Chandar's retirement. So let us see the solution. So realization account में हम इंक्रीज इन एसेट या डिक्रीज इन लायबिलिटी को क्रेडिट में लिखेंगे एंड डिक्रीज इन एसेट या इंक्रीज इन लायबिलिटीज को हम डेबिट में लिखेंगे. क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि मशीन की कीमत कम हो रही है, डेप्रिशिएट हो रहा है मशीन, सो इट्स एन एसेट, सो टू मशीन डिक्रीजिंग बाय 10%. और पेटेंट्स भी डिक्रीज हो रहे हैं बाय 20%. सो 5,000 का 20% इज 1,000 रुपीज. देन एक ओल्ड टाइपराइटर को बेचा गया है और ये ओल्ड टाइपराइटर वाज एन अनरिकॉर्डेड एसेट. तो बैंक मिलेगा, पैसा मिलेगा हमें 600 रुपीज रिसीव कर रहे हैं. एंड देन इन्वेस्टमेंट्स वर टेकन, सो बाय इन्वेस्टमेंट्स 10,000 का इन्वेस्टमेंट है, उसे 15,800 रुपीज में पार्टनर के द्वारा ले जाया गया. सो देयर इज एन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय रुपीज 5,800. सिर्फ इतना ही है, हमें क्रेडिट बैलेंस मिलेगा टू प्रॉफिट, और ये हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में देंगे 1/2:1/3:1/6. एंड द पार्टनर्स आर अमित, बालन एंड चंदर. चंदर हैज रिटायर्ड, है ना, चंदर रिटायर हो गया है. और ये क्या है, इसमें आप एलसीएम लेंगे, अगर एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 6. 6 को सबके नीचे में 6 बनाना है डिनोमिनेटर में, तो रेशियो क्या बन जाएगा हमारा, रेशियो बन जाएगा 3:2:1. देखिए यहाँ 3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे तो न्यूमरेटर में 3 आ जाएगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो न्यूमरेटर में 2 आ जाएगा, और 6 का 6 है तो 1. सो 3:2:1 में ब्रेक करेंगे. बैलेंसिंग फिगर 6 है, 600 है, सो 300, 200 एंड 100. So now partners capital account by balance brought down as given in the balance sheet. 40,000, 36,500 and 20,000. And then revaluation का profit 300, 200 and 100. Then general reserve भी है. General reserve is given in the balance sheet, so that should be given in old profit sharing ratio to all the partners, that is 3:2:1. So general reserve of rupees 9,000. Is it 9,000? It's 6,000. So 6,000, so it is 3,000, 2,000 and 1,000. Then treatment of goodwill we will go for, and goodwill of the firm is
हाउ मच 27,000. सो हु इज द रिटायरिंग पार्टनर? चंदर इज द रिटायरिंग पार्टनर. कभी भी हमें नहीं भूलना है कि कौन रिटायर हो रहा है. कभी गलती से आप दूसरे को रिटायर करेंगे तो सॉल्यूशन गलत हो जाएगा. चंदर्स गुडविल, टोटल गुडविल ऑफ द फर्म है 27,000 और चंदर का पोर्शन कितना है? चंदर का पोर्शन है 1/6. सो 4500. और इनका गेनिंग रेशियो क्या है? गेनिंग रेशियो इज, चंदर के जाने के बाद जो गेनिंग रेशियो बच रहा है वो क्या है? 3:2. सो वी विल ब्रेक दिस इन 3:2. सो अमित कितना देगा? अमित विल गिव 4500 इंटू 3/5. सो 9 3 and Balan will give 4500 into 2/5, that is 1800. So यहाँ दे दीजिए आप चंदर को बाय अमित. बाय बालन. So to Chandar. So this is the treatment of goodwill. क्वेश्चन में लिखा है चंदर टुक इन्वेस्टमेंट्स. सो टू इन्वेस्टमेंट एट ₹15,800. सॉरी, जनरल रिजर्व 9,000 रुपीज का है. सो ये होगा 4,500 एंड देन हियर इट विल बी 3,000 एंड हियर इट इज 1,500. प्लीज करेक्ट इट. फाइन. नाउ जो कुछ भी चंदर को देना है अब वो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे. एंड हियर ग्रैंड टोटल इज 26,100 और लोन में आएगा 10,300. ये तो हो गया चंदर का अकाउंट क्लोज. लेकिन हमें अमित और बालन के अकाउंट को क्लोज करना है और इसे हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी लिखना है. सो हम क्लोजिंग बैलेंस जो है वो बाहर कैलकुलेट करेंगे अमित का और बालन का. सो अमित और बालन का क्लोजिंग बैलेंस हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे, फिर इसे रीडिस्ट्रीब्यूट करके फिर यहाँ शो करेंगे. सो बालन का टोटल कीजिए और ये 1,800 रुपीज लेस कीजिए तो बैलेंसिंग फिगर आएगा 37,900. उसी तरीके से अमित का ग्रैंड टोटल कीजिए इतना और उसमें से 2,700 लेस कीजिए तो उसका ग्रैंड टोटल, उसका बैलेंसिंग फिगर आएगा 42,100. अब इनको आप ऐड कीजिए, ये हो गया ₹80,000. फाइन. मतलब एक्चुअल जो बैलेंसिंग फिगर है अमित और बालन का वो 42,100 और 37,900 है, जिनका ग्रैंड टोटल 80,000 है. लेकिन ये दोनों जो है ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं है. क्वेश्चन में कहा है कि इसे हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रखना है. सो हम क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे टू बैलेंस क्लोज डाउन. इसी 80,000 को हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो है 3:2 में यहाँ अरेंज करना है. सो आप अरेंज करेंगे तो यहाँ आएगा ₹48,000 और 32,000. फाइन. अब हम इसे एक्चुअल में क्लोज करेंगे और जहां भी बैलेंसिंग अमाउंट आएगा वहां हमें करंट अकाउंट लिखना है. सो बालन का ग्रैंड टोटल है 39,700. यहाँ भी 39,700 बनाने के लिए हमें यहाँ एक बैलेंसिंग फिगर इंसर्ट करना होगा और ये है ₹5,900 का और इसे हम करंट अकाउंट लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है. अब अमित का जब आप ऐड करेंगे तो यहाँ आएगा 50,700. मतलब डेबिट में ज़्यादा है 50,700 और जो अमाउंट शॉर्ट है वो भी है 5,900 रुपीज़ का. तो इसे भी आप लिखेंगे बाय करंट अकाउंट. सो ये जो अमित का करंट अकाउंट है इसे हमें एसेट में लिखना है और बालन का करंट अकाउंट को हमें लायबिलिटी में लिखना है. सो इस तरीके से कैपिटल अकाउंट बनकर तैयार है. देखिए करंट अकाउंट यहाँ डेबिट बैलेंस शो कर रहा है इसलिए इसे हमें एसेट में लिखना है और ये वाला करंट अकाउंट जो बालन का है ये क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है इसलिए हमें इसे लायबिलिटी में लिखना है.
Now let us see question number 46. N, S and B were partners in a firm sharing profits and losses in the proportion of 1/2, 1/6 and 1/3 respectively. The balance sheet of the firm as at 31st March 2017 was as follows. Capital N rupees 30,000, S rupees 30,000, B rupees 28,000. Bills payable rupees 12,000. General reserve rupees 12,000. Sundry creditors rupees 18,000. Freehold premises rupees 40,000. Machinery rupees 30,000. Furniture rupees 12,000. Stock rupees 22,000. Debtors rupees 20,000 minus 1,000 in the outer column rupees 19,000. And cash rupees 7,000. Grand total is rupees 1,30,000. Further, the question says, let us see. B retired from the business on the above date and the partners agreed to the following. Freehold premises and stock were to be appreciated by 20% and 15% respectively. Machinery and furniture were to be depreciated by 10% and 7% respectively. Provision for bad debts was to be increased by rupees 1,500. On B's retirement, goodwill of the firm was valued at rupees 21,000. The continuing partners decided to adjust their capitals in their new profit sharing ratio after retirement of B. Surplus or deficit, if any, in their capital accounts was to be adjusted through their current accounts. So same है जैसे कि क्वेश्चन नंबर 45 में हमने बनाया था, वैसे ही हमें करंट अकाउंट यहाँ ओपन करना है. Prepare revaluation account, partners capital accounts and balance sheet of the reconstituted firm. So revaluation account बनाएंगे by freehold premises. It is increasing by 20%, so 8,000 rupees. And stock भी increase हो रहा है, so increase in stock है 15%, so 3,300 rupees का stock increase हो गया. लेकिन मशीन की वैल्यू कम हो रही है, तो टू मशीन decreasing by 10%, 3,000. and टू फर्नीचर भी डिक्रीज हो रहा है 7%, विच इज 840. और हमें पीवीडी बनाना है 1,500 रुपीज से और बनाना है, सो बना दिए, बस इतना ही है. अब प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करेंगे. इट इज 11,300 दिस साइड, सो बैलेंसिंग फिगर आएगा रुपीज 5,960. सो ये क्योंकि क्रेडिट बैलेंस है इसलिए ये प्रॉफिट है, और इसे हम रेशियो में देंगे 1/2 1/6 1/3. फाइन. बहुत बार ऐसा लगता है कि ये रेशियो किस तरीके का दिया हुआ है, जबकि हमें फ्रैक्शन में रेशियो देखने की आदत नहीं है. सो इसका एलसीएम लीजिए आप. 3, 6 और 2, 3 और 6 का आएगा एलसीएम 6. तो सबके डिनोमिनेटर में 6 करने के लिए, जैसे कि मैं यहाँ बता देता हूँ, 1/2 को आप 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कीजिए, और 1/6 जो है सेकंड वाला वो तो वैसे का वैसे ही रहेगा क्योंकि डिनोमिनेटर में 6 ही है. अब थर्ड वाला है 1/3, इसको डिनोमिनेटर में 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कीजिए, तो ये आ गया 3/6 इज टू 1/6 इज टू 2/6. अब सबके डिनोमिनेटर में 6 आ गया, इसलिए ये जो रेशियो है वो क्या है, 3:2:1 है. 1:2 है. 3:1:2. और पार्टनर्स कौन है, एन, एस एंड बी. दे दीजिए. 3:1:2 में इसे ब्रेक करेंगे तो आएगा 2980, देन 993 एंड 1987. सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जैसा कि बैलेंस शीट में दिया हुआ है क्वेश्चन में. 30,000, 30,000 एंड 28,000. फिर है जनरल रिजर्व भी दिया हुआ है, जनरल रिजर्व, और इसे हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटेंगे 3:1:2 में, और ये आ जाएगा 6,000 रुपीज, 2,000 रुपीज एंड 4,000 रुपीज. देन रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट लिखेंगे 2980, then 993 and 1987. फाइन. अब ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. है गुडविल
7,000 का निकलेगा जिसे एन और एस देंगे। सो बाय एन's कैपिटल अकाउंट एंड बाय एस कैपिटल अकाउंट। फाइन। रिटायरिंग पार्टनर बी का गुडविल निकलेगा 21,000 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज 7,000। 7,000 को हम ब्रेक करेंगे 3:1 में और यहां देंगे। सो ये आ जाएगा 5,250 एंड 1,750। सो दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर। 7,000 कैसा आया आपको समझ में आया? 21,000 डिवाइडेड बाई 3। बस अब बी को रिटायर कर दीजिए, जो भी अमाउंट आएगा ग्रैंड टोटल कीजिए, आएगा 40,987। सो टू बीज लोन। अब इन दोनों कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का भी अकाउंट क्लोज कर दीजिए, क्योंकि हमें रीएडजस्ट करना है इसलिए हम इसे ब्रॉट डाउन करेंगे। 32,993 टू बैलेंस क्लोज डाउन यहाँ आएगा, जो कि गलत है। 31,243 ये सही एक्चुअल कैपिटल बैलेंस है, लेकिन हमें ये कैपिटल बैलेंस नहीं चाहिए, हमें प्रपोर्शन में चाहिए न्यू रेशियो के, विच इज 3:1। एन को भी क्लोज करेंगे 38,980 माइनस ये वाला फिगर करेंगे तो आएगा यहाँ 33,730। ये एक्चुअल क्लोजिंग बैलेंस है, लेकिन ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं है, इसे हमें रीअरेंज करना है। सो हम इसे ब्रॉट डाउन करेंगे नए तरीके से ट्रीट करने के लिए। इन दोनों का टोटल करेंगे हम। सो ट्रू बैलेंस क्लोज डाउन नया बनेगा, इसको और इसको इन दोनों को टोटल करेंगे आप तो अमाउंट आएगा ₹64,973 और इसे हम ब्रेक करेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, दैट इज 3:1। सो जब 3:1 में यहाँ आप ब्रेक करेंगे तो अमाउंट आएगा 48,730 एंड 16,243। रिटायरिंग पार्टनर तो चला गया है तो उसके लिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब इन्हीं दोनों को ग्रैंड टोटल करके हमने 3:1 में ब्रेक किया तो ये आया। ये एक्चुअल कैपिटल बैलेंस है जो फर्म चाहती है मेंटेन करना। तो ये देखिए अमाउंट में डिफरेंस है, यहाँ कुछ और अमाउंट है, यहाँ कुछ और अमाउंट है। तो यहाँ जो बैलेंसिंग फिगर आ रहा है ये है 15,000 रुपीज का, और इसे हमें मेंटेन करना है करंट अकाउंट में, जो कि एक एसेट है। अगर बैलेंस शीट बनाएंगे हम तो इसे एसेट साइड शो करेंगे। उसी तरीके से जब आप एस को क्लोज करेंगे तो एस का क्रेडिट बैलेंस निकलेगा। और इसमें बैलेंसिंग फिगर हमें डेबिट में मिलेगा जो कि क्रेडिट बैलेंस है। सो टू करंट अकाउंट, और ये हम बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में लिखेंगे। सो इस तरीके से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमें कैपिटल को एडजस्ट करना है। ये वाला स्टेप ही हमारे लिए मेन था, बाकी का जो हम पढ़ रहे हैं वो तो हर क्वेश्चन का हिस्सा है। फाइन, नाउ लेट अस सी हाउ दिस इज टू बी शोन इन द बैलेंस शीट। सो बैलेंस शीट बनाएंगे, सबसे पहले कैपिटल्स लिखेंगे। कंटिन्यूइंग पार्टनर एन और एस का 48,730 एंड 16,243 ऐड करेंगे 64,973। देन बिल्स पेबल एज इट इज ₹12,000, नो चेंज, ना इंक्रीज हुआ है ना डिक्रीज। देन सन्डे क्रेडिटर्स ऑफ ₹18,000। देन रिटायरिंग पार्टनर बीज लोन जो कि हमको अभी पे करना है, बचा हुआ है। देन कंटिन्यूइंग पार्टनर एस करंट अकाउंट
₹15,000। बस इतना ही आएगा लाइबिलिटीज की तरफ। अब एसेट्स की तरफ आ जाइए। फ्री होल्ड प्रीमाइसेस, 8,000 इंक्रीज हो गया। एंड मशीन 3,000 रुपीज कम होकर के अब हो गया है 27,000 रुपीज। फर्नीचर डिक्रीज्ड बाय 7%, अब हो गया है 11,160 का। स्टॉक is now 25,300, इंक्रीज हो गया है ये 15%। देन डेटर्स आर ऑफ ₹20,000, लेकिन हमने प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 1,500 रुपीज से इंक्रीज करके 2,500 रुपीज का बना दिया। इंक्रीज्ड बाय 1,500, 1,000 पहले से था, सो ये हो गया 17,500। देन कैश, नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ कैश। देन कंटिन्यूइंग पार्टनर एस करेंट अकाउंट 15,000। ये आपको लिखना नहीं भूलना है क्योंकि ये बैलेंसेस हैं और डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस ही हम बैलेंस शीट में शो करते हैं। अब ग्रैंड टोटल लगाइए। $1,50,960। सो मुझे उम्मीद है कि आपने वीडियो को अच्छे से देखा है और एक्सप्लेनेशन को भी सुना है, आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया है। इन केस कुछ डाउट है देन प्लीज पुट इट इन द कमेंट सेक्शन। Thank you so much for liking, subscribing and sharing this channel, and please don't forget to share this channel with your friends so that they can study from the comfort of their home. Please mention in the comment section the city from where you are watching this video. Thank you so much for watching this video.